Welcome to all of you on V plus U Academy. My name is Ashish Garg. In the last class, we have seen the shear force diagram and bending moment diagram, top 10 PYQs under Avengers 10 program. Today also with the same strategy, we are going to cover the deflection of beam topic and its top 10 question so that you will understand the basic types of question asked in the any examination, either that is GATE or UPSC ESC examination. If you see the type number of questions asked in the ESC, you will find out that around 2 to 4 questions is asked every year in the ESC, while in the GATE you have found that every year one question of 2 marks is asked in the GATE exam. So keeping this in mind, we will follow the top 10 questions and I will tell you the questions which is repeatedly asked in the examination. But before that, I have a question for you, extra question from the SFD and BMD that we have covered in the last exam. Do try it. The question is, you have given this frame, one end is hinged and other is roller, and a load is applied, uniformly distributed load of magnitude W. Now you have to tell the bending moment at B. Find moment at B point. You also have given this length L and moment of inertia of each column and beam section. So do try this question. It's a very easy question. You can solve it directly by seeing it. Its option are, let me give you option also. A, that is 0, B, that is WL by 2, C, WL by 4, or D, WL. These are your options. So do try it and comment in the section. So after that, अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, that is our deflection of beams. So today topic deflection of beam and its PYQ. Deflection of beam PYQ. Deflection of beam से आपको, as I already told you, around 2 to 4 question. So it will be around 4 to 8 marks every year. 4 to 8 marks. तो ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. गेट में आपको 1 to 2 क्वेश्चन विच मेक्स इट अराउंड 2 to 4 मार्क्स. 2 to 4 मार्क्स. तो ये गेट का और ESC का हमने देख लिया. अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन इसकी एक बेसिक समरी बता देता हूँ मैं इस चैप्टर की आपको. यदि इस चैप्टर की समरी देखोगे आप, बेसिक समरी, उसमें आपको डिफ्लेक्शन निकालने के स्टैंडर्ड मेथड्स गिवन है. कुछ स्टैंडर्ड मेथड क्या है? आप डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर फोर्स आप डायरेक्टली निकाल सकते हो. और एक है हमारे पास डायरेक्ट मेथड्स, मतलब आपको जैसे हमारे पास है डबल इंटीग्रेशन मेथड. सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर 5 मेथड्स हैं जिसके क्वेश्चंस हम आज देखेंगे. बेसिकली जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं आपको अधिकतर स्टैंडर्ड मेथड से काफ़ी मिलेंगे एज कंपेयर टू these other 5 or 6 methods. So you must know some of the basic formulas to do this class, and I will be going to tell you all those basic formulas to understand the topics that we will discuss today or the questions we will do today. So what are those formulae? Our first formula is, I hope you know already this formula, but for revision I am telling you this. Our first formula is, this is a cantilever. If we have given EI and L, and if a load is acting at the free end, then the
थीटा इज गिवन एज पी एल स्क्वेयर बाई 2EI, while delta is given as PLQ by 3EI। ये क्वेश्चन आपको रिपीटेडली पूछा गया है और आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। ये आपका थीटा, ये आपका डेल्टा की वैल्यू। सेकंड फॉर्मूले आपको अगेन कैंटिलीवर गिवन है जिसके ऊपर यूडीएल गिवन है। आपसे अगेन पूछा जाएगा डेल्टा की वैल्यू एंड थीटा की वैल्यू। तो आपका थीटा इस केस में आएगा WL³ ओवर 6EI और डेल्टा आएगा आपका WL4 डिवाइड बाई 8EI। थर्ड फॉर्मूला, you have given again cantilever, now you have UVL, again you have to find out the value of theta and delta। Here theta is given as WL³ over 24EI, while delta is given as WL4 over 30EI। आई होप आपको ये फॉर्मूला पता भी होंगे और यू हैव टू लर्न ऑल दिस फॉर्मूला so that to solve the question very easily। Our fourth formula from the simply supported beam, if this is a hinge and this is roller and if this is a point load acting having magnitude P, then theta is given as PL³ PL square over 16EI। What is theta value? This is our theta value। If this is A and this is B, then theta A or theta B equals to PL square over 16EI, while delta is given as maximum delta value, that will be PL³ over 48EI। तो ये वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए टू सोल्व एनी क्वेश्चन। हमारा फिफ्थ फॉर्मूला है इफ यू हैव अ सिंपली सपोर्टेड बीम एंड यूडीएल इज एक्टिंग ओवर द बीम, दिस इज अवर यूडीएल हैविंग मैग्नीट्यूड W, वेट पर यूनिट लेंथ, देन द थीटा वैल्यू हियर इज गिवन एज, if this is theta then it is given as WL³ over 24EI, while delta value is given as 5/384 WL4 डिवाइड बाई EI। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। सिक्स्थ फॉर्मूला है हमारा। सिक्स्थ फॉर्मूला क्या है हमारा? ये देखो, जैसे आपको ये कैंटिलीवर का ही है, देखो ये मूवमेंट गिवन है आपको। हमने देख लिया था पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड यूवीएल। अब मूवमेंट को भी देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो जब आप इसको डिफ्लेक्टेड शेप बनाओगे तो आपको कुछ ऐसी मिलेगी। तो थीटा का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? m0L/EI एंड डेल्टा विल बी m0L²/2EI। m0L²/2EI। So this was our sixth formula। These are around 10 to 12 formula on the basis of which you solve entire deflection of beam। आप डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो यदि आपको ये फॉर्मूले पता है। इफ यू नो ऑल दिस फॉर्मूला यू कैन सोल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। सो वी हैव सीन ऑलरेडी 6 फॉर्मूला। नाउ मूविंग टू द 7th फॉर्मूला। आवर 7th फॉर्मूला, if you have simply supported beam and a couple at the spot of magnitude m0, then you have been asked about what is the value of rotation at point A, what is the value of slope at point A and slope at point B. So slope at point A is given as m0L/3EI, while slope at point B is given as m0L/6EI। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो बन जाता है यूजुअली, आपको यहाँ पर स्लोप गिवन है m, ये अगेन सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पर भी m गिवन है। तो आपको पूछा जाता है
थीटा ए और थीटा बी की वैल्यू। इफ दिस इज योर स्पॉट ए एंड दिस इज योर स्पॉट बी, यू हैव बीन आस्क्ड द वैल्यू ऑफ थीटा ए एंड थीटा बी। आपको पता है ये दोनों वैल्यू सेम आएगी, कैलकुलेट करो कितनी आएगी। ये वैल्यू आएगी आपकी m0 ly या ml/2ei, ml/2ei। कैसे? आपको पता है थीटा ए ml/3ei और वहाँ से आप निकालोगे तो ml/6ei, तो आप ऐड करोगे तो ml/2ei। तो दिस विल बी आवर वैल्यू ऑफ थीटा। एट्थ फॉर्मूला इज, हमारा 8th फॉर्मूला है, इफ यू हैव गिवन अ फिक्स्ड स्पॉट एंड पॉइंट लोड इज एक्टिंग एट द सेंटर, that is at a distance of L/2 from the right spot or the left spot, then the deflection under the point load is given by 1/4 of the deflection under the simply supported beam। मतलब क्या हुआ? 1/4 टाइम्स ऑफ PL³ डिवाइड बाई 48EI, PL³ डिवाइड बाई 48EI। तो ये आपका डिफ्लेक्शन होगा। सिमिलरली यदि अब UDL लग जाता है, ये हमारी फिक्स स्पॉट, नाउ वी हैव UDL हैविंग मैग्नीट्यूड W, देन व्हाट इज द डिफ्लेक्शन? इट विल बी 1/5 of the deflection at the simply supported beam, that is 1/5 of 5/384 WL4 डिवाइड बाई EI। तो ये आपका डायरेक्टली आप यहाँ से याद कर सकते हो। 1/5 है, यहाँ पे 1/4 है। तो ऐसा क्यों है? आपको पता चल रहा है यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो डिक्रीज हुआ ड्यू टू फिक्स स्पॉट वो आपका 25% है, जबकि यहाँ पर डिफ्लेक्शन आपका 20% से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब कि 1/5 से। तो आपको पता है यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आएगी वो कम आएगी एज कम्पेयर टू पॉइंट लोड। तो ये आप यहाँ से भी याद कर सकते हो 1/5 और 1/4 कैसे आएगा। अब हम अपना नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं 10th। If we have a fixed spot again and one of the spots settle by amount delta, let us consider this spot settle by amount delta, then what is the moment at point A and B? If this is point A and this is B, then you have to tell about the moment at point A and moment at point B. This you can do either by conjugate B method, because we don't need to do the derivation, we can directly learn the formula of some of the direct equations or direct equations. So we can write directly value of MA and MB। हम डायरेक्टली MA और MB की वैल्यू याद कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू जो आती है MA की आपकी वो आती है 6EI डेल्टा बाई L²। आपको गिवन रहता है EI एंड डेल्टा, दिस इज गिवन डेल्टा एंड दिस इज लेंथ। तो आपको MA की वैल्यू भी 6EI डेल्टा बाई L² एंड सिमिलरली MB की भी वैल्यू 6EI डेल्टा बाई L²। आपको दोनों की वैल्यू सेम मिलती है, MA इक्वल्स टू MB इक्वल्स टू 6EI डेल्टा बाई L²। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप याद रखना इसको। इससे आपको जनरली अब क्वेश्चन कैसे मिल जाते हैं, जैसे क्वेश्चन की बात करें इधर, यदि क्वेश्चन की बात करें इधर, तो आपको बोल दिया जाता है जैसे ये आपके पास दोनों फिक्स स्पॉट हैं, तो हमारे पास एक यदि हिंज स्पॉट है और हिंज स्पॉट सेटल कर जाती है बाय अमाउंट डेल्टा, तो आपसे पूछा जाएगा अब मूवमेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, MA पर मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो यदि आप इसको फिक्स मान लोगे, हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? हम इसको सोल्व कर सकते हैं ऐसे, आप पहले फिक्स स्पॉट कंसीडर करो, और सेटलमेंट यदि डेल्टा है तो आपको पता है मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी, 6EI डेल्टा बाई L²। आपको पता है 6EI डेल्टा बाई L², और दोनों ये मूवमेंट की डायरेक्शन ही एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी ध्यान रखना, 6EI डेल्टा बाई L²। यदि आपका ये सिंपली स्पॉट कंडीशन है तो आपका मूवमेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0। तो मूवमेंट की वैल्यू 0 होगी तो आपको एक सेकेंडरी मूवमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा टू मेक इट 0। आप यदि एक दूसरा मूवमेंट अप्लाई करोगे यहाँ पे ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 6EI डेल्टा बाई L², तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेट
इक्वल्स टू 0। लेकिन जब आप ये अप्लाई करोगे इधर तो आपका यहाँ पर भी कैरी ओवर फैक्टर करके 3i डेल्टा बाई एल स्क्वायर आएगा, जिससे आपको अब नेट क्या मिलेगा, नेट मिलेगा आपको 3ei डेल्टा बाई एल स्क्वायर एंड 0 इधर। तो आपको वी विल गेट 0 हेयर। सो आपको क्या मिला, एम ए की वैल्यू 3ei डेल्टा बाई एल स्क्वायर। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा 10th फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की। These formulas are very important for the solution of the deflection of beam topic। आप जब भी डिफ्लेक्शन ऑफ बीम टॉपिक करोगे तो ये फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं अगेन एंड अगेन। तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप इसका चार्ट बना लो और वॉल पे लगा लो, जहाँ पर आप रेगुलरली स्टडी करते हो वहाँ पर ही वॉल पे लगा लो, क्योंकि ये टॉपिक्स और ये फॉर्मूले आपको पूछे ही जाएंगे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम से। अब हम अपना 11th फॉर्मूला देखेंगे। जैसे आपको सिंपली स्पॉटेड बीम गिवन है, ये इस फॉर्मूले के पूछने के कम चांसेस है। वैसे इस फॉर्मूले के पूछने के कम चांसेस हैं। ये डिस्टेंस आपको a गिवन है और ये b गिवन है और ये पॉइंट a और ये पॉइंट b। तो आपको पूछा जाता है व्हाट इज द डिफ्लेक्शन अंडर द पॉइंट लोड। पॉइंट लोड के अंदर डिफ्लेक्शन क्या होगा। यदि इसकी आप डिफ्लेक्टेड शेप बनाओगे तो कुछ ऐसी बनेगी, वो कुछ ऐसी बनेगी। तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा इसकी वैल्यू होगी पी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ओवर 3ei इंटू एल। एल क्या होगा हमारे पास, a प्लस बी। एल की वैल्यू a प्लस बी। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है। और सिमिलरली यदि ये फिक्स स्पॉट है और यदि आपके पास अब अगेन पी लोड एक्ट कर रहा है और ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस b है, आपको गिवन है ei। तो आपसे अगेन पूछा जाएगा डिफ्लेक्शन की वैल्यू। उस केस में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो आएगा आपके पास पी ए क्यूब बी क्यूब ओवर 3ei एल क्यूब। तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। ये हमारा 12th फॉर्मूला है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। अब इसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बट एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज अवर 13th फॉर्मूला। इफ यू हैव गिवन दिस फिक्स स्पॉट एंड दिस इज ऑल्सो योर फिक्स स्पॉट, बट दिस ए स्पॉट रोटेट्स बाय एंगल थीटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपकी ए स्पॉट रोटेट कर गई है थीटा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय अमाउंट थीटा। You have been asked about the movement at A and the movement at B। आपको मूवमेंट की वैल्यू बतानी है एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट B। तो इसका आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए। एम ए जो आएगा आपके पास 4ei थीटा A डिवाइड बाई एल और एम बी आएगा आपके पास 2ei थीटा A डिवाइड बाई एल। ये याद रखना थीटा A है यहाँ पर, क्योंकि थीटा भी आपके पास 0 है। आप ये सोल्व कैसे कर सकते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से कर सकते हो। यदि आपको पता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला ऑल्सो। सो नाउ वी विल बिगिन विद अवर सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द डिफ्लेक्शन। ऑफ डिफ्लेक्शन that is usually asked in the examination, in the IES examination. So our first question is we have given a cantilever, a propped cantilever. This is the force of S is applied and T is applied at free end. Now this distance is given to you as L. You have to find, you have given that slope at point at free end, equals to 0. Slope at free end equals to 0. Find the ratio of T by S.
T/S का रेशो आपको फाइंड आउट करना है। इसके ऑप्शंस हैं 1/2, 1/3, 1/4 और 1/6। इसके ऑप्शंस है आपको अवेलेबल 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/6। सॉल्व कीजिए। मैं अब आपको सॉल्यूशन बताता हूँ इसका। आपको गिवन है स्लोप एट द फ्री एंड 0, मतलब क्या हुआ, इफ दिस इज पॉइंट A, B एंड C, देन वी हैव गिवन थीटा C इक्वल्स टू 0। वी हैव गिवन वैल्यू ऑफ थीटा C इक्वल्स टू 0। यदि आप एक इंडिविजुअल लोड को सुपर इम्पोज करोगे जब इफेक्टिवली, आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज दिस इज अवर S लोड प्लस दिस इज योर T लोड एंड दिस इज लेंथ L एंड दिस इज लेंथ 2L। आप जब इन दोनों लोड को सुपर इम्पोज करोगे तो आपको स्लोप की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप इसकी हेल्प से स्लोप निकालो फ्री एंड के ऊपर। हमें गिवन है S लोड, तो आप फ्री एंड के ऊपर स्लोप कैसे निकालोगे, आप डिफ्लेक्टेड शेप जब बनाओगे इसकी तो आपको कुछ ऐसी मिलेगी, आपको डिफ्लेक्टेड शेप कुछ ऐसी मिलेगी। जब आप डिफ्लेक्टेड शेप बनाओगे तो ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी, मैंने आपको फॉर्मूले अभी बताए भी है, उसी से निकालो SL² डिवाइड बाई 2EI, और आपको डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी SL³ ओवर 3EI। तो आप यदि यहाँ पर डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हो तो आप कैसे निकाल पाओगे, दिस डिस्टेंस विल बी थीटा इंटू L बिकॉज दिस इज ऑल्सो थीटा एंड दिस इज गिवन टू अस एज L, then we can calculate this distance equals to theta into L. So, and we already know this deflection, we can calculate total delta at this point, and we can calculate total deflection also at this point. Now we know already deflection at the free end. हमें डिफ्लेक्शन ही की कंडीशन गिवन है, तो हमें यहाँ पर हमें स्लोप की ही कंडीशन गिवन है, तो हमें डिफ्लेक्शन निकालने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। हमें स्लोप पता चल गया, डेट इज SL² ओवर 2EI। सिमिलरली अब आप इस केस से आप यहाँ पर स्लोप निकाल लीजिए, क्योंकि आपका लोड डाउनवर्ड एक्टिंग है, तो ये आपका थीटा आएगा, और थीटा की वैल्यू होगी TL², और L की वैल्यू कितनी है आपकी, लेंथ कितनी है 2L, T इंटू 2L² ओवर 2EI। तो ये कितना आ जाएगा TL² ओवर EI, 2TL² over EI. Now this is in the clockwise direction and here we have this is in anti-clockwise direction. If we subtract these two, 2TL² over EI minus SL² over 2EI is given to us as 0. ये कंडीशन हमें गिवन थी, that is theta C value equals to 0. ये कंडीशन हमें यहाँ से गिवन थी, तो अब डायरेक्टली आप T/S की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगी 1/4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, C। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, तो ट्राई करो। सेकंड क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बात करते हैं पहले। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो रहा है आपका, नहीं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है आपको ये 2 बार पूछा गया है, पिछले मतलब 5 साल में सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, बस आपको वैल्यू चेंज कर दी गई है। लेंथ की वैल्यू आपको L/2 है और L/2 है दोनों साइड में। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, वी हैव गिवन अ फिक्स्ड बीम एंड अ UDL ओवर द हाफ ऑफ द बीम। This is the UDL over the half of the beam. UDL over the half of the beam. The value of the UDL is 10 kN per meter, and this distance is 4 meter. 4 meter, and this point is hinge. ये है हमारे पास hinge. ये हमारे पास given है hinge. हमें बताना है find the value of RB. If this is your A point. If this is your A point, this is B point and this is C point, you have to find the value of RB. आपको RB की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपको 3-4 बार मिलेगा। कैसे कैसे, जैसे इसमें आपको UDL गिवन था, आपको पॉइंट लोड भी गिवन रहेगा,
कभी कभी हिंज के ऊपर। अभी जैसे इसके अंदर आर भी पूछा है, सिमिलरली कभी कभी हमसे मूवमेंट की वैल्यू भी पूछते हैं, मूवमेंट एट सी। तो सिमिलर क्वेश्चन है, यदि आप आर भी निकाल सकते हो तो मूवमेंट भी आप इजीली निकाल सकते हो। या फिर आपसे डिफ्लेक्शन भी पूछ सकते हैं, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी आपसे पूछा जाता है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, आपसे डिफ्लेक्शन की वैल्यू पॉइंट बी पे पूछी जा सकती है। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस है आपके पास, सिमिलर क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को पहले हम देखते हैं। आपको पता है जब जहाँ हिंज होता है वहाँ पर मूवमेंट की वैल्यू 0 होती है। एट अ हिंज पॉइंट वी हैव 0 मूवमेंट, हेयर वी हैव m equals to 0, then it means we have only value of shear here, shear की वैल्यू हमारे पास इधर रहेगी। तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, हम इसको डायरेक्टली दिखा सकते हैं, दिस इज आवर वैल्यू ऑफ shear, लेट दिस इज आवर RB that we have to calculate, and this is given to us as 10 kilonewton per meter and length is 4 meter. Here if this is upward direction, then on this point this is in the downward direction. Now you can write down the equation of compatibility, which will be WL4 over 8EI minus RB L cube over 3EI, that will gives you RB L cube. If this is L1 and this is L2, I am writing down L1 and L2 here, RB L2 cube over 3EI. तो जब आप इसको सोल्व करोगे आप यहाँ से RB की वैल्यू निकाल सकते हो। W आपको गिवन है 10, so we have 10, length is given to us as 4 meter and divided by 8. EI is common in equation, we can cancel out. Then RB, again we have given value of L, that is 4 cube over 3 equals to RB into 4 cube over 3। तो आपको यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा 2RB 4 cube over 3 equals to 10 into 4 to the raised to power 4 divided by 8। सोल्व करके RB की वैल्यू निकाल लीजिए, ये आपका क्वेश्चन ऐसे सोल्व होएगा। सिमिलरली अब मैं जैसे बता रहा था, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे अब इसी से आप दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा। ये आपको रोलर गिवन है, यहाँ पर रोलर गिवन है और ये डिस्टेंस गिवन आपको 3a और ये डिस्टेंस गिवन आपको 2a। E और I आपका कांस्टेंट है। यदि ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, फाइंड करना है आपको डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B। फाइंड क्या करना है, B पॉइंट पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू, ये आपके पास रोलर गिवन है। तो कैसे करोगे, सिमिलर मैनर में करोगे जैसे अभी किया हमने। आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो, ये फिक्स हैंड, ये आप रिएक्शन दीजिए इसको ऊपर। इस पर लोड क्या है, लोड की वैल्यू नहीं बताई मैंने आपको, इस पर लोड गिवन है P, ये ऊपर से P लोड आपको एक्ट कर रहा है, जिसकी आपसे आपने डिफ्लेक्शन वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, सिमिलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में R एंड दिस इज अवर 2a। सेम क्वेश्चन बनेगा, बस यहाँ पर UDL की जगह आपको पॉइंट लोड है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला सेम कंटिन्यू रहेगा, तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, अराउंड 5-10 क्वेश्चन पूछा गया है ये, मतलब आपको इक्वेशंस चेंज करके 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये ऐसे करना होता है, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन लाइक आई हैव शोन यू। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिंपल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, आपको बताना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली स्पोर्टेड बीम, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली स्पोर्टेड बीम अंडर पॉइंट लोड अकर्स एट लोकेशन ऑफ, क्वेश्चन क्या आपका, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अंडर
under simply supported beam, in simply supported beam, maximum deflection in simply supported beam under point load occurs at कहाँ पर होगा? फर्स्ट पॉइंट लोकेशन ऑफ, इट occurs at location of zero shear force or it occurs at location of zero bending moment, or it occurs at location of zero slope, or it occurs at location of zero shear force as well as shear force and bending moment both. तो ये क्वेश्चन ट्राई करो आप और आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होगा विद टाइमलाइन देख के कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आप मुझे बताओ। तो ये था हमारे पास इजी क्वेश्चन। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन नहीं है, थर्ड क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। ये तो आपको वार्म अप था डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन का। तो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है जो आपका वो रिलेटेड है आपका रिजिडिटी से, बीम रिजिडिटी से। जो भी हम डिफ्लेक्शन देख रहे हैं ये देख रहे हैं ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट। वी आर सीइंग डिफ्लेक्शन ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट, डिफ्लेक्शन ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट। हमने जब फर्स्ट शुरू किया था हमने वहाँ पर डिफ्लेक्शन देखे थे ड्यू टू एक्सियल लोड्स, हमने डिफ्लेक्शन देखे थे एक्सियल लोड्स। अब डिफ्लेक्शन पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल, वी हैव टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन फॉर shear force also और इन केस ऑफ टॉर्शन। बट आज हम बात जो करने वाले हैं वो बेंडिंग मूवमेंट से ही बात कर रहे हैं, और अभी तक हमने बेंडिंग के कारण ही डिफ्लेक्शन देखे हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ बीम इज अ फ्लेक्सुरल मेंबर, इट टेक्स बेंडिंग, तो इसलिए हम बेंडिंग के कारण ही डिफ्लेक्शन देखते हैं। तो आज अभी जो क्वेश्चन है आपका, जो थर्ड क्वेश्चन है, यू हैव गिवन दिस कैंटिलीवर and you have given a rigid beam here we have, if this is A point, this is B point and this is C point, and this length is L and this is also L. This is not a rigid beam, AB is not a rigid but BC is a rigid. Now you have to find out the deflection at point, find deflection at point B and स्लोप एट पॉइंट बी। आपको डिफ्लेक्शन की वैल्यू और स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ट्राई कीजिए, ऑप्शंस देता हूं मैं। ये गेट का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। आपके ऑप्शन है 5/6 WL³/EI इफ दिस इज डिफ्लेक्शन, एंड 3/2 WL²/EI, सिमिलरली WL²/3EI, और ऑप्शन में WL³/3EI। थर्ड ऑप्शन आपका WL³/2EI, WL³/2EI। दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है WL³/2EI एंड WL²/EI, और डी है आपका, और डी ऑप्शन आपका WL³/3EI एंड 3/2 WL²/EI, 3/2 WL²/EI। आपको इन चार ऑप्शन से चूज करना है, ट्राई करें। अब मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे होएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको यहाँ पर लोड गिवन है, वैसे ये मैं शायद शो करना भूल गया। अब आप ट्राई कीजिए। आपको W लोड गिवन है फ्री एंड के ऊपर, आपको बताना है डिफ्लेक्शन की वैल्यू एट पॉइंट B एंड C, मतलब कि यहाँ पर आपको डिफ्लेक्शन की वैल्यू बतानी है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे हम? आपको पता है रिजिड सेक्शन जो है, रिजिड सेक्शन किसे बोलते हैं? जो बैंड ना हो, मतलब कोई चीज़ रिजिड होगी तो आप उसको बैंड नहीं कर पाओगे, तो जो बैंड ना हो वो रिजिड सेक्शन होता है। लेकिन रिजिड सेक्शन लोड को ट्रांसफ़र करता है। यदि
आप कैंटिलीवर, जैसे ये सेक्शन है, आप W लोड लगा रहे हो तो ये लोड इस तरफ ट्रांसफ़र कर देगा, मतलब कि आगे लोड ये ट्रांसफ़र कर देगा, तो आपको यहाँ पर मिलेगा W एंड मूवमेंट आल्सो W टाइम्स L। मूवमेंट क्या आएगा यहाँ पे W इंटू L। तो आपको मूवमेंट की वैल्यू भी गिवन मिल जाएगी और आपको लोड भी मिल जाएगा। तो सिंपली अब आपको करना क्या है, आपको निकालनी है थीटा बी की वैल्यू और डेल्टा बी की। तो जब आप सिंपली कैसे करोगे, अब डेल्टा क्या आएगा आपका WL³ ओवर 3EI, WL³ ओवर 3EI प्लस में WL इंटू L² ओवर 2EI, WL इंटू L² ओवर 2EI। ये आपके पास आ जाएगा 5/6 WL³ ओवर EI, 5/6 WL³ ओवर EI। एंड थीटा की वैल्यू क्या आएगी WL² ओवर 2EI। ये फॉर्मूला वही सब फॉर्मूला जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, आपको वही फॉर्मूले सब यहाँ पर यूज़ करने हैं और कुछ नहीं, और कुछ हाई फाई नहीं है इसके अंदर, बस आपको फॉर्मूले यूज़ करने हैं, डायरेक्टली आपको डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो ये आपके पास हो गया 3/2 WL² ओवर EI। ऑप्शन चेक कीजिए अपने, हमारा ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा। सो दिस इज आवर क्वेश्चन एंड इट्स आंसर इज ए। अब इसी से क्वेश्चन है, यू हैव बीन आस्क्ड आल्सो बी, इसका सेकंड जो क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो इससे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पूछा गया आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा सी। यहाँ पर आपको डिफ्लेक्शन की वैल्यू बतानी है। आपको पता है यहाँ पर थीटा की वैल्यू, आपको थीटा की वैल्यू पता है और आपको ये डिफ्लेक्शन भी पता है, तो आप इजीली निकाल सकते हो। याद क्या रखना है आपको, ये W लोड को वहाँ, यदि मैं बताऊँ इसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन आप डेल्टा सी आएगा आपके पास डेल्टा बी प्लस थीटा बी टाइम्स L। आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है, आपको उसके अंदर कैंटिलीवर का लोड, कैंटिलीवर का डिफ्लेक्शन ऐड नहीं करना है, जो है हमारे पास PL³ ओवर 3I। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये सेक्शन जो है बैंड नहीं होगा। आप जब इतना पार्ट को सोल्व कर लोगे, आपको प्लस में ये सेक्शन और मिलेगा, ये सेक्शन और मिलेगा, ये रिजिड गिवन है आपको, और ये पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, दिस लेंथ इज L एंड दिस इज W। तो आपको यहाँ से जो डिफ्लेक्शन आएगा वो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये रिजिड सेक्शन है, ये रिजिड सेक्शन है, इसलिए आपको डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, उससे आपको शायद कंसेप्ट अच्छे ढंग से समझ में आए। यही पॉइंट, एक क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, वो भी सिमिलर क्वेश्चन है। देखो क्या है, आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो ये गिवन है, ये फिक्स स्पॉट है, ये आपका W लोड लग रहा है, ये लेंथ L, ये हमारे पास रिजिड सेक्शन है, ये हमारे पास रिजिड सेक्शन है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड इफ दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, फाइंड डिफ्लेक्शन एट C एंड मूवमेंट एट पॉइंट A। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने पहले सोल्व किया है। तो डिफ्लेक्शन एट C कैसे निकालोगे आप, अब आप इसको जो है ऐसे नहीं कर सकते, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसे। क्यों नहीं कर सकते, आप अब खाली लोड ही ट्रांसफ़र कर रहे हो। आप जैसे ये, क्योंकि रिजिड सेक्शन है तो आप इसको यहाँ पे फिक्स स्पॉट कंडीशन कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि जो आपका सेक्शन है अलोंग द लेंथ वो रिजिड है। तो इसके बाद यदि नॉन रिजिड सेक्शन है आपके पास, तो आप जब उस पर लोड अप्लाई करोगे तो ये सेक्शन आपका डिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो आपका खाली जो नॉन रिजिड सेक्शन है वो डिफ्लेक्ट होगा। तो आपको डायरेक्टली कैसे मिलेगा, यदि ये फिक्स स्पॉट कंडीशन है तो ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये इक्विवेलेंट इसके होगा लेंथ L, तो डेल्टा आपको मिलेगा PL³ ओवर 3EI। तो ये आपको डिफ्लेक्शन की वैल्यू ये मिलेगी। मूवमेंट पूछा आपसे, मूवमेंट आप देख लो, इजी है। लीवर आर्म आपको कितना है, मूवमेंट कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस, लीवर आर्म जिसे बोलते हो आप,
तो आपका लीवर आर्म है 2L, तो आपके पास कितना आ जाएगा W इंटू 2L, आपके पास मूवमेंट की वैल्यू W इंटू 2L। ये मूवमेंट ट्रांसफर जरूर करता है, रिजिड सेक्शन मूवमेंट ट्रांसफर करता है, फोर्सेज ट्रांसफर करता है, बट बीम को डिफ्लेक्ट नहीं होने देता, कर्व जो है डिफ्लेक्शन नहीं आने देता। रिजिड सेक्शन का मतलब ये होता है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आपको गिवन है सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम जिसमें आपको मोमेंट m गिवन है राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में। मोमेंट m गिवन है, both are in clockwise direction and this is length L, and we have also given value of E and I. Then we have given that the value of theta A divided by theta B is equals to 2. The question is we have to find the value of MB divided by value of MA, or reverse of it, MA by MB. MA divided by MB. What is the value of MA divided by MB? Now you can solve this question very easily. You already know the slope of the point A and B. If you remember the formula, we know that if any moment mx, then the theta is given as ml by 3ei. So we can use this formula here. We can use this formula here. आपको MA by MB का रेशियो निकालना है। आपको थीटा A गिवन है, थीटा A एंड थीटा B आपको गिवन है। अब कैसे निकालेंगे आप? सिमिलरली थीटा A को क्या लिख सकते हो? MA L by 3EI, और जब थीटा B को लिखो, थीटा जब मोमेंट आएगा MB से, तो आप उसको लिखोगे माइनस साइन MBL डिवाइड बाई 6EI। एक्चुअली जब आपका MB मूवमेंट लगेगा तो ये टर्न ऊपर की तरफ होगा। इफ वी हैव टेकन क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज स्लोप एज पॉजिटिव, देन द वैल्यू ऑफ एंटी क्लॉकवाइज स्लोप विल बी नेगेटिव, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल हैव this value of theta, and similarly theta b can written as mbl by 3ei, mbl by 3ei in negative sign, plus mal by 6ei, plus mal by 6ei. Now we have given the ratio. From ratio we can find out the value of ma by mb. If we divide them and put them equals to 2, we know ei is common overall. We can cancel out value of ei and also the length. Then this will be ma by 3 minus mb by 6 divided by ma by 6 minus mb by 3, or you can rewrite it as 2ma minus mb divided by ma minus 2 times of mb, which is equals to 2. अब इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा 2ma माइनस mb इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ma माइनस 4 टाइम्स ऑफ mb। 4 टाइम्स ऑफ mb को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। अब कुछ प्रॉब्लम है इसमें। हमने जब इसको सोल्व किया यहां से, तो यहां पर हमने थीटा ए निकाला। जैसे थीटा भी निकालेंगे आपको यहाँ पर क्लॉकवाइज मिलेगा, ये पॉजिटिव आएगा आपका, और ये नेगेटिव। ये आपको क्लॉकवाइज स्लोप देगा थीटा बी जो एमबी के कारण आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा, और जो एमए के कारण आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो आपको क्लॉकवाइज जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो जब यहाँ पर सोल्व करोगे फर्दर तो माइनस 2ma प्लस 4mb। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 4 टाइम्स ऑफ ma इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ mb। नाउ ma by mb इज गिवन एज
MA by MB is given as 5/4. This is our answer. This question is asked 2 to 3 times from in the previous year. So this question is very important. Do see here. Try to solve this part by making different diagram. Now you making different diagram. If you have clockwise movement MB here, then you will have slope of MB, that is theta b. Slope from MB, that is theta b in clockwise direction. हमने यहाँ पर गलती क्या की, हमने इसको नेगेटिव पुट किया, तो ये नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा. ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, इसलिए आप पहले इसका अलग से डायग्राम बनाना और फिर इसको सोल्व करना. तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन. इससे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं. सिमिलर क्वेश्चन, एक सिमिलर क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको. इफ यू हैव गिवन दिस सिंपली स्पोर्ट कंडीशन and this is moment m and this is also moment m. Now you have to find the value of theta a. If this length is L and E and EI is given to you, find the value of theta a. Think about it. थीटा ए की वैल्यू आपको निकालनी है. यहां से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये भी. कैसे निकालोगे आप? जैसे पहले निकाली थी, आपको पता है ड्यू टू मूवमेंट आपका शेप कुछ ऐसी आएगी, तो ये आएगा ML/3EI. बट यहां से जब आप सोल्व करोगे प्लस दिस मूवमेंट, दिस विल गिव्स यू लाइक दिस. नाउ दिस वैल्यू will be equals to ML/6EI. Now this is in clockwise direction and this is in anti-clockwise direction. Net theta b will be given as ML/3EI minus ML/6EI, and this will provide us with the answer ML/6EI in the clockwise direction, which is positive as per our convention. Clockwise direction हमारे पास पॉजिटिव होगी. तो ये भी एक सिमिलर क्वेश्चन था जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन से, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, जो यूजुअली आपको एग्जाम में मिलेगा, मिलता है. आपको गिवन है सिंपली स्पोर्टेड कंडीशन हैविंग अ यूडीएल, ऑफ 24 किलोन्यूटन per meter and length of 8 meter. Now you have also given the value of E, that is 200 into 10⁶ kilonewton per meter square, and value of I, that is equals to 20 into 10⁻⁻5 meter square. Now what you have to do is, आपको एक स्पोर्ट प्रोवाइड करनी है इसके अंदर, सच दैट द स्पोर्ट प्रोवाइडेड विल हैव, इफ यू प्रोवाइडेड आरसी स्पोर्ट अंडर द सेंटर ऑफ द सिंपली स्पोर्टेड बीम, द क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मच दिस बीम हैज टू डिफ्लेक्ट फॉर हैविंग, हाउ मच this simply supported beam have to deflect at the center, so that we have equal reactions at A, B and C, at A point, B point and C point. आपको बताना है कि डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी सेंटर के ऊपर, जिससे आपको RA इक्वल्स टू RB इक्वल्स टू RBC आपको मिले. यदि अभी बात करें तो टोटल जो रिएक्शन लगेगी, डेट इज RA प्लस RB, डेट इज इक्वल्स टू 24 टाइम्स ऑफ 8, विच विल बी इक्वल्स टू 192 किलोन्यूटन. 192 किलोन्यूटन. आपको बताना है जब ये तीनों सेम होंगे तो आपको कितना डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा. तो आप करके देखिए, ट्राई कीजिए. इजी क्वेश्चन है, आपका ये IAS में पूछा गया है. यदि आप इसको देखोगे तो ये आपको ऐसे मिलेगा, ये स्पोर्ट कंडीशन यहाँ पे कुछ, जिससे आपको
ये डिफ्लेक्शन बताना है, ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू बतानी है फॉर विच दिस रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन विल बी इक्वल. If I say RA equals to RB equals to RC, then and we know total R value, that is 192, then value of RC will be equals to 192 divided by 3. This will be value of RC, which will be equals to 64 kilonewton, which will be equals to 64 kilonewton. यदि आपकी ये वैल्यू 64 किलोन्यूटन है, उसके करस्पॉन्डिंग जो डिफ्लेक्शन आएगा वो डिफ्लेक्शन आपको परमिसिबल होगा. मतलब यदि हम इन सिंपली स्पॉटेड कंडीशन में डिफ्लेक्शन देखेंगे तो आएगा आपके पास 5/384 WL4 डिवाइड बाई EI. ये आपका डिफ्लेक्शन आएगा कब? सिंपली स्पॉटेड कंडीशन में. सिंपली स्पॉटेड कंडीशन में ये आपके पास डिफ्लेक्शन की वैल्यू ऑब्टेन होगी. लेकिन हमें टोटल डिफ्लेक्शन इतना नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसमें आपको एक पॉइंट लोड लगाना है नीचे P, जिसके कारण आपकी रिएक्शन सारी सेम हो जाए, और उस P की वैल्यू है 64 किलोन्यूटन, या हमने यहाँ पर उसको RC बोला है, 64 किलोन्यूटन RC की वैल्यू. तो इसके कारण जो डिफ्लेक्शन आएगा वो आएगा आपके पास, इसके कारण डिफ्लेक्शन आएगा RC L³ बाई 48 EI. तो यदि आप डिफ्लेक्शन नेट की बात करो तो आपको करना क्या है? दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. PL³ ओवर 48 EI. आपको EI की वैल्यू गिवन है, आपको W की वैल्यू भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, और P भी गिवन है. P क्या आएगा हमारे पास? 64 किलोन्यूटन, या फिर आप इसको R लिख लीजिए, RC जो हमने लिखा हुआ है. तो वहां से आप डेल्टा निकाल पाओगे जो आपको परमिसिबल होगा इस डिफ्लेक्शन तक. उसके बाद आपको रिएक्शन सेम मिलेगी. तो ये था हमारा आज का 5th क्वेश्चन. आई थिंक दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी लॉन्ग बिकॉज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई कैन नॉट skip any question for the sake of doing things suddenly. So we are going to manage this lecture in the next class. Hoping to see you in the next class. Thank you.